انڈیا کے اندر جو ہے وہ احتجاج ہو رہا ہے سکھوں کا، ان کو جو ہے ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے۔ اس مودی کو نا الٹا لٹکانا چاہیے اور چھتا لگانے چاہیے۔ اگر وہ میرے سامنے ہے تو اس کا میں کلیجہ نوچ کر کھا جاؤں، میں جا کے اسے پکڑ کے اس کی بوٹیاں کھاؤں اور اس کو نوچوں تاکہ مجھے پھر سکون ملے اس مودی سرکار کے لیے۔ یہ جو سکھوں کا احتجاج ہو رہا ہے انڈیا کے اندر اور بڑے سارے بندے مار رہے ہیں، ہماری طرف سے مودی صاحب کو لعنت ہے بے شمار۔ یہ جو مودی کی حکومت ہے یہ یہی چاہتی ہے کہ یہاں پہ صرف ایک ہندو رہے، نہ سکھ رہے، نہ مسلمان رہے۔ کسونے پہنا چاہیے پوری دنیا کو کسونے پہنا چاہیے، پوری دنیا بندے مگر ہونی چاہیے۔ انڈیا کے اندر جو ہے وہ سکھوں کا احتجاج ہو رہا ہے، ان کے حقوق نہیں مانے جا رہے، ان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ وہ ایکچولی سکھوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ سے ادھر ایک ہندوازم لانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ کل تو رات بند کر تو انڈیا کہاں سے لے کے آئے گا کھانے کے لیے؟ گندم کہاں سے پیدا کرے گا؟ چاول کہاں سے لے کے آئے گا؟ السلام علیکم ناظرین، میرا نام حمدوش عدنان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ ناظرین، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور سکھوں کے حقوق جو ہے انہیں نہیں دیے جا رہے، ان کے مطالبات نہیں مانے جا رہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے پاکستانی عوام سے اس مسئلے کے بارے میں ہم نے پوچھنا ہے اور ساتھ ہی یہ جاننا ہے کہ عالمی سطح پر جو دیکھا جائے پاکستان کو ان اقلیتوں کے حقوق نبھانے پر نہیں اہمیت ملتی، لیکن انڈیا کو اقلیتوں کے حقوق نہ نبھانے پر اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تو اسی سلسلے میں پاکستانی عوام سے ہم نے یہ بھی جاننا ہے۔ آئیے میرے ساتھ۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، یہ جو سکھوں کا احتجاج ہو رہا ہے انڈیا کے اندر اور بڑے سارے بندے مار رہے ہیں اور ان کے مطالبات مان بھی نہیں رہے مودی صاحب جو ہیں، اس پر آپ کیا کہیں؟ اس کو میں ایک بڑا سمپل سا کنسپٹ ہے کہ یار ادھر 45% جو زراعت ہے ادھر، ٹھیک ہے، اگر وہ لوگ زراعت والوں کو کچھ نہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں تو ان کا ضرورت کیا ہے کہ اس طرح کا میرا مطلب ان کے اوپر تشدد کریں گے لوگ، ٹھیک ہے۔ ایک چیز مجھے روٹی کھانے کو نہیں ملے گی، اگر وہ کل کو زراعت بند کر دے تو انڈیا اپنے کہاں سے لے کے آئے گا کھانے کے لیے؟ گندم کہاں سے پیدا کرے گا؟ چاول کہاں سے لے کے آئے گا؟ ٹھیک ہے، اگر وہ سکھوں کو ایکچولی سکھوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ سے ادھر ایک ہندوازم لانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ اور یہ صرف خالی اس میں نہیں، وہ پوری ایشیا کے اندر پوری ایشیا جو ہے بدرسی، جس کے اندر پاکستان ہے، سری لنکا ہے، وہ کہتے ہیں ایک ہی کنسپٹ ہے جو جغرافی کا اس کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں صرف ایک ہندو، یعنی کہ ہندوازم ہے، یہ ہمارے صرف ہندوؤں کا ہے۔ وہ سکھوں کو کل کو انہوں نے مسلمانوں کو کیا، آپ وہ سکھوں پہ شروع ہو گئے، وہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہے، صرف اپنی ایک ہی قوم جانتے ہیں، وہ ہندو ہیں، باقی سکھوں کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ نو ڈاؤٹ کہ 1947 میں سکھوں نے ہم پہ بڑا ظلم کیا، مگر انہیں عقل آ گئی ہے، شعور آ گیا ہے کہ مسلمان ہی ہمارا ساتھ دے سکتا ہے، تو آج وہ ہمارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ کسی قسم کا ان کے ہر احتجاج کے ساتھ ہیں۔ اگر انہوں نے کسی قسم کا کیا تو انشاءاللہ پورا فیروزپور بھی ان کے ساتھ ہوگا، پورا پنجاب ہمارا ان کے ساتھ ہوگا، سکھوں کے ساتھ۔ کسی قسم کا کوئی ان کو گھبرانے کی ضرورت ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ کل میں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے روڈوں کو بنا کیلیں لگا دی ہیں تاکہ وہ ٹرک لے کے نہ آ سکیں۔ تو بات یاد رکھیں، جس کے پاس جذبہ ہوتا ہے نا، انہیں یہ کیلیں یا بندوقیں یا لوہے کی سلاخیں انہیں کچھ نہیں کہتی۔ جس نے لڑنا اس نے جذبے کے ساتھ لڑنا، اور نو ڈاؤٹ کے سکھوں کے پاس ایک بڑا جذبہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عنایت فرمائے گا۔ اور رہی بات یہ کہ ہم لوگ ہمیشہ ہر قدم پہ ان سکھوں کے ساتھ ہیں، جس طرح کی وہ لوگ کہیں گے ہم لوگ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں سکھوں کے ساتھ۔ اچھا، دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے اقلیتوں کے حقوق دے رہا ہے اور نبھا بھی رہا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں ایسا سنا کہ کسی علاقے میں، پاکستان کے کسی علاقے میں اس طرح کا ظلم ہوا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے انڈیا کا تو سب کے سامنے ہے، وہ نہیں اس طرح سے حقوق دے رہا۔ تو عالمی سطح پر تمام لوگ انڈیا کے ساتھ ہیں، پاکستانیوں کے ساتھ نہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں؟ اس کے بڑا ایک سمپل سی بات ہے یار، واٹ از دا WHO؟ کیا ہے UN کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، زیرو۔ اگر UN نے کوئی اپنی بات کرسچنوں نے منوانی ہے، اس کے لیے سب کچھ ہے۔ پاکستان کے اندر پوائنٹوں کے اندر میرا خیال کو اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں آپ اٹھا کے کوئی ایک ایسا ملک بتا دیں جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ یا اقلیتوں کے ساتھ ظلم نہ ہوتا ہو۔ انڈیا کو وہ امریکہ، پہلے اب جو بائیڈن آ گیا، پہلے ٹرمپ تھا، بات یہ UN کا ہے تو ان کے اپنے لیے، ہماری اقلیتوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا صرف ایک ہی تعلق ہے، کہاں مسلمانوں کو کہاں اقلیتوں کو مارنا ہے، بس۔ اس کے علاوہ UN کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ بتائیں نا کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک کہاں نہیں ظلم ہو رہا ہے؟ عراق کے اندر UN مر گیا، فلسطین کے اندر UN مر گیا، بتائیں نا کشمیر میں UN مر گیا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، افغانستان میں UN مر گیا، بتائیں نا کہاں ہے؟ کون سا ایسا ملک ہے؟ ایران میں UN مر گیا، سعودی عرب میں UN مر گیا، مصر میں UN مر گیا،
कहाँ नहीं नजर आता। इसराइल जुल्म कर रहा है तो वहाँ यूएनओ का है। ये तो एक ड्रामा है अमेरिका का, यूएनओ बना के उसका एडवांटेज किसी को बता देंगे, किसी को एडवांटेज आई, किसी एक मुल्क को बता दें एडवांटेज है कोई हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बेहतरीन, अल्लाह की रहमत है, ठीक ठाक हूँ, सब खैरियत है। अच्छा मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, इंडिया के अंदर जो है वो सिखों का एहतजाज हो रहा है, उनके हकूक़ नहीं माने जा रहे, उन पर जुल्म हो रहा है, बेचारे इतने अरसे से सड़कों पर निकले हुए हैं, तो मोदी भी नहीं इनकी सुन रहा, तो इस पर आप क्या कहें? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मोदी को ना उल्टा लटकाना चाहिए और छिता लगाने चाहिए, और उनको हकूक़, उनके जो हक़ हैं वो उनको देने चाहिए। मोदी सरकार ने जो है ना बड़ा हमें तंग किया हुआ है। अगर वो मेरे सामने है तो उसका मैं कलेजा नोच कर खा जाऊँ, लेकिन यह है कि मुझे वो नज़र नहीं आ रहा, मुझे इतनी हिम्मत नहीं। अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे और सॉरी नबी के सदके, अली के सदके मैं जाके उसे पकड़ के उसकी बोटियाँ खाऊं और उसको नोचूं, ताकि मुझे फिर सुकून मिले इस मोदी सरकार के लिए। अच्छा, ये आपने जो बात की बड़ी जोश और जज्बे के साथ की है, लेकिन अगर देखा जाए अक़लियतों के हकूक़ पाकिस्तान दे रहा है और निभा रहा है, हमने कभी नहीं ऐसा सुना। लेकिन इंडिया के अंदर जो है वो ये इस तरह के एहतजाज आए दिन देखने को मिलते हैं। लेकिन आलमी सतह पर पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ ही बात की जाती है अक़लियतों के हवाले से, और इंडिया को सपोर्ट किया जाता है। इस पर आप क्या कहें? आलमी सतह के जो लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो इनके बारे में सोचें और आपस में इत्तफाक में बैठकर कुछ इसके बारे में हल करें। उनको ज़रूरी है, ये आलमी सतह वाले जो हैं इनकी ज़रूरी होती है कि वो इस बात को अमल पे लाएं, इसको कवर करें और सारे मुल्कों को इकट्ठा करें और उसके बारे में इनको करें। ख़ास तौर पे मैं इमरान खान को मैसेज देना चाहूँगा कि वो इसके बारे में सोचें और जाकर उनको कहें कि ताकि, लेकिन उन्होंने तो सोचा है, सिखों के लिए करतारपुर भी बनाया है, हमने मतलब सिखों को बड़ा प्रमोट भी उन्होंने किया है, हमने भी किया है, तो अब आप इस पे क्या कहें? लेकिन उसका अच्छा किया है उसने, इमरान खान ने वो अच्छा किया है, लेकिन यह कि फिर भी उन्हें सोचना चाहिए, और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी सोचना चाहिए उनको कि ज़रा थोड़ा सा हाथ हल्का कर लें महंगाई के लिहाज से। हाँ, अच्छा, सिखों को आप क्या मैसेज देना? मैं उनको मैसेज यही दूंगा कि हिम्मत करें, हिम्मत से ही सारा काम बनता है। अगर हिम्मत हो तो इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर कामयाब होंगे। बिल्कुल इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अच्छा, ये जो इंडिया के अंदर जो है वो एहतजाज हो रहा है सिखों का, उनको जो है उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे, उनके मुतालबात जो है वो माने नहीं जा रहे, पिछले 1.5 महीने से वो एहतजाज कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? इस पे तो ये कहूँगा कि इंडिया को चाहिए कि वो जो है ना सिखों के जितने भी मुतालबात हैं उनके वो माने। हमारे पाकिस्तान को भी चाहिए, आलमी सतह को भी चाहिए उनका साथ दें, क्योंकि ये जो सिख बलादरी है इन्होंने हमारा साथ दिया था, हमें भी चाहिए इनका साथ देना। इंडिया में इतनी जो है ना वो जैसे कश्मीर में हो रहा है वैसे ही इंडिया में हो रहा है। इंडिया वाले जो है वो अपने मुल्क को सिर्फ जो है ना वो सभी को निकालना चाहते हैं, ठीक है, वो सिखों को निकालना चाहते हैं, मुसलमानों को निकालना चाहते हैं। ये जो मोदी की हुकूमत है ये यही चाहती है कि यहाँ पे सिर्फ एक हिंदू रहे, ना सिख रहे, ना मुसलमान रहे। तो इसलिए हमें भी चाहिए इनका साथ दें, हुकूमत को भी चाहिए, आलमी सतह पे भी लोगों को चाहिए कि इनका साथ दें। जो इनके लोग मार रहे हैं उनको मरने से बचाएं ये लोग। अच्छा, देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के हकूक़ दिए जाते हैं, हमने कभी नहीं सुना कि ईसाई के ख़िलाफ़ ऐसे बात हुई है, सिखों के ख़िलाफ़ बात हुई है। लेकिन अगर देखा जाए इंडिया तो अक़लियतों के हकूक़ नहीं देता, तो आलमी सतह जो है, आलमी सतह पर इंडिया को ही फेवर दी जा रही है, पाकिस्तानियों को नहीं दी जा रही, इस पर आप क्या कहें? सर इस पर देना चाहिए, हमारी हुकूमतों को भी चाहिए इसके ऊपर भी करें, ठीक है। ये जो इस्लामी जमहूरियत होती है ना, कोई भी जमहूरियत होती है, इंडिया में भी जमहूरियत ही है, ठीक है, उसके अंदर तो सबसे पहले सभी के हकूक़ होते हैं, ठीक है। गैर मुस्लिम जितने होते हैं उनको भी हकूक़ होते हैं, मुसलमानों को भी हकूक़ है, सिखों के भी हकूक़ है, ठीक है। जमहूरियत में ऐसा होता है ये, लेकिन वहाँ पे जमहूरियत होने के बावजूद वो बादशाही निज़ाम चल रहा है, ठीक है। अगर वहाँ पे जमहूरियत असल में होती तो सिखों के साथ ऐसा ना होता, सिखों के साथ जुल्म ना होता। ये पूरी दुनिया को चाहिए कि सिखों की सपोर्ट करे, हम भी सरदारों की सपोर्ट करते हैं, सिखों की सपोर्ट करते हैं। अच्छा, हमारे मुल्क में सिखों को सपोर्ट किया जाता है या नहीं? हमारे मुल्क में सिखों में हमारी आर्मी में बहुत सारे ऐसे जो अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं वो सिख बलादी के लोग हैं,
ठीक है। हमारे जज जो लगे हुए हैं वो सिख बिरादरी के लोग हैं। हमारे सेनेट में, कैबिनेट में जितने भी लोग बैठे हैं काफ़ी सारे लोग हैं जो सिखों में बैठे हुए हैं, ठीक है। हम तो, हमारी पुलिस में सिखों के लोग हैं, हमारी आर्मी में सिखों के लोग हैं, हमारे डॉक्टर जो है वो सिख हैं। हमारे मुल्क में तो इतनी सारी प्रायोरिटी दी जाती है इस कौम को। ईसाई मज़हब के भी लोग हैं, हत्ता कि हिंदू में भी जो है ना हमारी आर्मी में लोग हैं। देखें इंडियंस के सारे जो सिख हमें सुन रहे हैं, जहाँ तक हमारी जो है ये वीडियो पहुँच रही है, सुने हमारी आवाम जो है, हमारी आवाम जो है सारी सिखों के साथ है। और इसके अलावा जो मोस्टली जो इदारे हैं उसमें सिख काम कर रहे हैं। हम जो है सिखों की सपोर्ट में हमेशा से। थैंक यू सर जी आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप कैसे? तबीयत ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये जो इंडिया के अंदर जो एक सिख बिरादरी एहतजाज करी, उनके हकूक़ नहीं मान रही नहीं मान हुकूमत, और मोदी भी नहीं इस पे एक्शन ले रहा और उल्टा कत्लो गारत हो रही है, तो आप इस पे क्या? बहुत ज़्यादा नरेंद्र मोदी से के बहुत सख्ती से कह रहे हैं भी पूरी दुनिया वास्ते अभी चैलेंज कर कह रहे हैं भी पूरी दुनिया मदद करे। कौमी मुतहदा जो भी उन्होंने भी कह रहे हैं भी अभी मदद करो कश्मीर वास्ते भी ते जड़ा अपना उधर सिखा की कम्युनिटी वास्ते अभी उन्होंने वास्ते बहुत शुक्रगुजार हैं भी जरा उन्होंने मदद हो पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया उन्होंने मदद करे। और इमरान खान भी ये कह रहे हैं भी तुम भी बड़ी कोशिश करो कौमी मुतहदा जगह कश्मीर आज़ाद कर उधर अपना सिख कम्युनिटी वास्ते बड़ा उन्होंने किरदार अदा करना, अच्छा करना, उन्होंने वास्ते बेहतर करना। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो अक़लियतों के हकूक़ को सही तौर पर निभाया जा रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर नहीं निभाया जा रहा है। लेकिन जो आलमी सतह है सारी, वो पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ ही बात करती है और इंडिया के हक़ में इस पर आपका है। वो गलत कर देना पाकिस्तान के इंडिया के हक़ च बहुत गलत देंगे। पाकिस्तान के हक़ च देना चाहिए। पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है, बड़ी अच्छी गल करता पाकिस्तान। सारे मुल्कों वास्ते पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ देता और हर मुल्क में पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ दिता। लेकिन इंडिया जरा ना शरारतों तो बात नहीं आता, इन्हू बाहर आ जाना चाहिए। पूरी इन कसून पैने चाहिए पूरी दुनिया तो कसून पैने चाहिए। पूरी दुनिया इहदे मगर होनी चाहिए। मोदी सुन ला साडी गल। पाकिस्तान का बच्चा भी जरा ना, पाकिस्तान का बच्चा भी जरा ना तेरे वास्ते लड़ने वास्ते तैयार रहेगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल जज्बा इन्ना है। मोदी तो बाद आ जाए ना, हरकतां तो बाद आ जा पूरे पाकिस्तान तो बाद आ जा। बच्चा भी तेरे वास्ते सुन मारोगे मोदी साहब ने। और इंशाअल्लाह अल्लाह के गुना इंशाअल्लाह पाकिस्तान कश्मीर आज़ाद होएगा। इंशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। कौमी मुतहदा पूरी दुनिया में मदद करेगी अल्लाह के गुना पाकिस्तान की। और सिखा की सिख कम्युनिटी वास्ते बहुत जुल्म हो रहा, बहुत जुल्म कर रहे हैं। तू इंशाअल्लाह बेहतर होएगा अल्लाह के हुक्म नाल। इंशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। अच्छा, ये जो इंडिया में एहतजाज हो रहा है, इसमें देखा जाए वो सिखों को जो है उनके मुतालबात नहीं माने जा रहे, उन पर जुल्म हो रहा है। 1-1.5 महीने से वो एहतजाज कर रहे हैं, उनके जो है मोदी बिल्कुल सुन ही नहीं रहा उनकी बात। तो इस पर आप क्या कहें? अक्सरियत अपनी जगह पे और अक़लियत अपनी जगह पे। अक़लियतों के हकूक़ भी उनको देने चाहिए, जो कि मोदी हुकूमत अच्छा नहीं कर रही। तो हमारी तरफ से मोदी साहब को लानत है बेशुमार, ताकि उनको जिस तरह पाकिस्तान में अक़लियतों का जमात का ख्याल रखा जाता है उधर भी होना चाहिए। मुसलमान नहीं बल्कि हर अक़लियत को कोई ना कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। वो किसान भाई हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। मुल्क भी देखें ना, किसानों पर ही चल रहा है। वैसे देखा जाए इतना बड़ा उनका जो है बजट जो है किसानों से आता है। हाँ जी, किसान से आता है। तो मुल्क का पहिया जो है वो किसान की वजह से ही चलता है। उनको चाहिए कि ये मोदी सरकार को उनका ख्याल रखें। अच्छा, देखा जाए तो अक़लियतों के हकूक़ जो हैं वो पाकिस्तानी देते हैं। हमने कभी नहीं ऐसा सुना कि इस तरह से कोई मजहबी इख्तलाफ हो हमारा आपस में, ना सिखों के साथ ना ईसाइयों के साथ। लेकिन इंडिया के अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इंडिया जो है अपने अक़लियतों के हकूक़ नहीं दे रहा। आलमी सतह पर जो है वो पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझा जाता इस मसले में, लेकिन इंडिया के साथ है। इस पर आप क्या? इस पे यही है, उसको शर्म करनी चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान अक़लियतों का और दूसरे मज़हब का ख्याल रखते हैं पूरी दुनिया में, और इंडिया में भी उनको ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह बर्मा में मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, इंडिया में भी हो रही है। इंडिया में तो हर अक़लियत के साथ, एक हिंदू मज़हब के अलावा सबके साथ ज़्यादती हो रही है। उनको चाहिए कि कोई शर्म करे मोदी और उनकी फ़ौज।
शर्म करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, ये अब सिखों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, इंडिया के सारे सिख और किसानों को? वो हमारे भाई हैं भाई, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं। उनका दुख दर्द हम महसूस कर सकते हैं, समझते हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने सिखों को पाकिस्तान में करतारपुर में वेलकम कहा है, बिल्कुल। इंडिया को भी उनके जमातों का और अक़लियत का ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा, ये इंडिया के अंदर जो सिख एहतजाज कर रहे हैं, 1-1.5 महीने से जो एहतजाज हो रहा है और उनको उनके हकूक़ नहीं मिल रहे, किसानों को भी उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे, तो इस पर आप क्या कहें? हम तो ये कहते हैं कि क्योंकि उनको हकूक़ उनके मिलने चाहिए, उनका जो भी मुतालबा है उनको पूरा करना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है। क्योंकि इंसान, हर इंसान एक जैसा ही होता है, तो इसलिए उनके ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है, जो उनके पकड़े जा रहे हैं, ये नहीं ऐसा होना चाहिए। उनको सही अच्छे तरीके से उनको भी पर्सनैलिटी मिलनी चाहिए। अच्छा, अगर देखा जाए पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ दिए जा रहे हैं, इंडिया में नहीं दिए जा रहे, जो सामने भी सबके सामने एक बात जो है नज़र भी आती है। तो अगर देखा जाए आलमी सतह पर इस मसले पर जो है पाकिस्तान का साथ नहीं दिया जाता, लेकिन इंडिया का साथ दिया जा रहा है, हत्ता कि वो जो है वो अक़लियतों के हकूक़ पूरे भी नहीं कर रहा। हाँ, ये तो बात ऐसा ही है, क्योंकि हर मुसलमान को जो इस तरह ये इंडिया में हो या किसी भी मुल्क में हो, तो इंडिया मुसलमान को जो ना असलियत नहीं दी जा रही, क्योंकि मुसलमान जो है वो अपने हक़ पे है और दीन इस्लाम के तरीक़ों पे चलता है। इसलिए उनको हर जो दूसरी पावर है वो उनको पैरों के नीचे मसलती है। इसलिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान जो होता है वो अल्लाह और रसूल का दोस्त होता है। इसलिए उनको पूरा हक़ देना चाहिए, उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। तो उनके साथ जो भी मुसलमान हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, या जो भी अच्छे तरीक़ों के साथ चलते हैं, उनको हक़ मिलना चाहिए। जैसा भी आपने बात की है, हम मुसलमान हैं, दीन इस्लाम पर हैं, तो इस्लाम हमें ये भी तो कहता है कि जो दूसरे मज़ाहिब है उनको भी जो है हकूक़ दिए जाएँ, उनकी कोई दिल आज़ारी ना किया जाए। तो इस मसले पर आप सिखों के साथ हैं या सिखों के ख़िलाफ़? नहीं, देखिए ना, हम जो एक इंसान के नाते तो उनके साथ हैं, बहरहाल कि जो हमारा दीन इस्लाम कहता है ना, वो चीज़ एक अलग है। वो अपने तरीक़ों पे चलते हैं, हम दीन इस्लाम पे तरीके पे चलते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा हमारे से अलग हैं, हम उनसे अलग हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान, आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर जो है वो सिख एहतजाज कर रहे हैं, उनको उनके मुतालबात नहीं माने जा रहे, तो इस पर आप क्या कहें? नहीं, हक जो किसानों के हैं वो तो उनको देने चाहिए, क्योंकि उनका हक है। तो ये उनको चाहिए गवर्नमेंट को कि उनके साथ ताउन करे, ताकि वो अपनी बच्चों की रोज़ी रिज़्क जो है वो आसानी के साथ कमाना चाहिए। अच्छा, देखा जाए तो पाकिस्तान जो है अक़लियतों के हकूक़ पूरे कर रहे हैं, जो समझ में आती है, नज़र भी आ रहे हैं, अमन है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में। तो लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, जो नज़र भी आता है सिखों के एहतजाज को देखा जाए तो। लेकिन आलमी सतह पर पूरी आलमी सतह जो है वो इंडिया के साथ है, इस बात को जानते हुए भी कि वो अक़लियतों के हकूक़ नहीं दे रहा, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है, तो आप क्या करें? मतलब उनका जो इंडिया का मीडिया है वो उनकी बात नहीं सुनता, किसानों की, वो हुकूमत की बात करता है जो भी है, और कोई भी प्रोटोकंडा हो वो आवाम को नहीं मिलता, वो हुकूमत को ही जो सपोर्ट करता है हुकूमत को ही करता है। हमारी आवाम जो है वो हुकूमत को सपोर्ट करती है, लेकिन हमारे हकूक़ भी मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस यही, उनको हक मिलना चाहिए उनका। अच्छा, ये बताएं कि सिख कहते हैं कि खालिस्तान बनकर रहेगा, तो क्या ऐसा बनेगा या नहीं? बनेगा इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं बनेगा। कितने % चांसेस हैं और कब बनेगा? इंशाल्लाह ताला जल्द बनेगा, क्योंकि इनका जो है ना एहतजाज ज़रूर रंग लेके आएगा और जल्द बनेगा इंशाल्लाह। तो हमने भी तो करतारपुर सिखों को फैसिलिटेशन दी है, बड़ी सारी हमने उनको सहूलियात दी हैं, वो आते हैं यहाँ पे, तो इस पर आप क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह दी हैं, वो आए, सो बिस्मिल्लाह, जितनी जब मर्जी हैं वो, मतलब आप वेलकम करेंगे उनको? इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
ये थी पाकिस्तानी अवाम। आपने देखा कि सिखों के लिए हम बहुत अच्छा जज्बा रखते हैं और हम सिखों के साथ हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान से ये भी जाना कि अक़लियतों के हवाले से जो हकूक़ पाकिस्तान देता है और भारत नहीं देता, तो उसके ऊपर उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। अब जो यहाँ तक जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और साथ ही बागी टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।